اس کو چھپاؤ، اگر تم پر کوئی احسان کرے تو اسے ظاہر کرو۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل میں قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ تم کالا لباس مت پہنا کرو، کیونکہ بے شک یہ فرعون کا لباس ہے۔ کسی کو پانی کی تمنا مت کرو، مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے، امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، اور کسی کو دکھ دے کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہیں، اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کر دو۔ چاپلوسوں اور چالاک لوگوں سے ہوشیار رہنا، سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندی بہتی ہے۔ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے۔ ہو سکتا ہے ہر کوئی اچھا نہ ہو، لیکن ہر ایک میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا فیصلہ جلد نہ کرو، کیونکہ ہر نیک کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا مستقبل ہوتا ہے۔ عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ جلد یا بدیر ہم سب کو اپنے کیے کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ عقل مند آدمی خود کو دنیا کے مطابق ڈھال لیتا ہے، بے وقوف شخص دنیا کو اپنے مطابق ڈھالنے پر قائم رہتا ہے۔ ہر کوئی دنیا کو بدلنے کی سوچتا ہے، لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، نہ کہ اپنے برابر کے ساتھ۔ ہر وہ رشتہ جن میں احساس بستا ہو انمول ہے۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ گناہ زہر کی مانند ہے، جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ عزت کی موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو، برے وقت میں کام آئے گی۔ میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیں، بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتا۔ وضو سے شکل، نماز سے عقل، اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے۔ گھر مال اور دولت سے نہیں بلکہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسے ہم نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن، یقین مانے کبھی واپس نہیں آتا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب رزق کی کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے
जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। आंसुओं का जारी ना होना दिल की सख्ती की वजह से है। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है। मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से है। लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह से हैं, और दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। अल्लाह ताला ने औरत का रुतबा बहुत बड़ा रखा है, इतना बड़ा कि रहमत बनकर आती है और जन्नत बनकर जाती है। मायूस मत होना, अल्लाह सबसे ज्यादा मायूस कुन लम्हात में उम्मीद भेजता है। और याद रहे, सबसे ज्यादा बारिश हमेशा तारीक तरीन बादलों से होती है। जब से लोग बुजुर्गों की कम इज्जत करने लगे हैं, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाएं ज्यादा भरने लगे हैं। औरत जब मोहब्बत के सफर में आंखें बंद करके चलती है, तो मर्द उसकी आंखें खोल देता है, कभी धक्का देकर और कभी धोखा देकर। दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे बदतरीन सजा ये है कि अल्लाह तुम्हारी जुबानों से अपना जिक्र रोक ले। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, उन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो और देखभाल कर लो, वो कभी अपने नहीं होते। अपना फायदा सोचे बिना सबके साथ अच्छा करें, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू रह जाती है। हर उस लड़की के लिए जो अपने इर्द गिर्द लड़कों का हुजूम देखकर फख्र महसूस करती है, याद रहे, मक्खियों की कसरत गंदगी की दलील है। अगर कोई मुझसे मोहब्बत करे या नफरत करे, दोनों मेरे हक में बेहतर हैं, क्योंकि अगर नफरत करेगा तो मैं उसके दिमाग में बस जाऊंगा, और अगर मोहब्बत करेगा तो दिल में बस जाऊंगा। हम इस दुनिया में यूं रहते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर यूं खामोशी से चले जाते हैं कि जैसे थे ही नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाती है। जब आप कुछ भी ना कर सकें तो अपनी दुआओं में इजाफा करते रहें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। खुश्क रवैया रखने वाला उस दरख्त के मानिंद है जो फूलों और फलों से महरूम हो, न बैठने वाले को साया दे और ना नजर डालने वाले को खुशी दे, और ना नजर डालने वाले को खुशी दे। अल्लाह की मोहब्बत एक समंदर की तरह है, आप उसका आगाज तो देख सकते हैं। 5 चीजें हमेशा कबूल करो। नसीहत की बात चाहे कड़वी हो, गरीब की दावत चाहे तकलीफ दे हो, नेक बीवी की मोहब्बत चाहे बदसूरत हो, भाई का अज़र चाहे दिल ना माने, और दोस्त का हदिया चाहे हकीर हो। 5 चीजों से हमेशा दूर भागो। अमीर से जब वो भूखा हो जाए, कमीने से जब वो अमीर हो जाए, नशेबाजों की महफिल से। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़ें। नंबर 1 भरोसा, नंबर 2 वादा, नंबर 3 ताल्लुक, और नंबर 4 दिल। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो कुछ आवाज नहीं करते, लेकिन दर्द बेपनाह होता है। 5 चीजें कभी बयान ना करो। नंबर 1 बेतहकीक बात अपनी जुबान से। नंबर 2 अपनी खूबियां। नंबर 3 कमजोर के सामने उसकी कमजोरी। नंबर 4 खुद गर्ज के सामने अपनी मुसीबत, और नंबर 5 बीवी के सामने गैर औरत की तारीफ। 3 तरीकों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। नंबर 1 खामोश रहना, खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। नंबर 2 सब्र करना, सब्र करने से खत्म हो जाती है। नंबर 3 शुक्र करना, शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। अगर आप बेइज्जती करने वाले के सामने मुस्कुरा दें तो आपकी मुस्कुराहट उसे तेज कांटों की तरह चुभती है।
दो ही तरह के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, एक कामयाब और दूसरा खूबसूरत को। मर्द भूल जाता है लेकिन कभी माफ नहीं करता, और औरत माफ कर देती है मगर कभी भूलती नहीं। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। दुनिया में खोकर तुमने उसे अपने लिए बोझ बना लिया है। इस दुनिया से ऊपर उठो, एक नई सोच तुम्हारी मुंतजिर है। पुरसुकून है वो जिसको कम या ज्यादा की फिक्र नहीं। कहते हैं हर वक्त अपना तन और मन साफ रखो, क्या खबर कब अपने रब से मुलाकात हो जाए। अगर कोई आपको बार बार तकलीफ दे रहा है तो एक काम करो, आप उसे नजरअंदाज कर दें, अपना रास्ता बदल लें, उसको इंतकाम की आग में जलने दें और पुरसुकून रहें। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर इंसान वो है जिसे सच्ची मोहब्बत नसीब हुई। लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और रब तुम्हारी नियतें देखता है। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पे उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले। दिल का बार बार टूटना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपको अपने और करीब करना चाहता है। बस दुआओं का सिलसिला ना रोकें। अपनी जुबान को सलाम करने का आदी बना लो, इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। अगर तुम खुद तरक्की नहीं कर सकते तो दूसरों की तरक्की करते देखकर अपनी आंखें बंद मत करो। अल्लाह तक पहुंचने के लिए खुद नहीं मरना होता है, ख्वाहिशात को मारना होता है। जिस कामयाबी की तुम तलाश में हो वो तुम्हें हर रोज 5 मर्तबा अपने पास बुलाती है। जिंदगी में सब कुछ बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। मांगना है तो अल्लाह से मांगो जो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह बदल देता है हालात को। कोई भी परेशानी, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो एक बात जान लो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हक और सच के रास्ते पर चलने का एक ही फायदा होता है कि रास्ते में कोई भीड़ नहीं होती। किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है कि वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी। गिरते आंसू और टूटे हुए दिलों की कदर सिर्फ अल्लाह जानता है। नाराजगी जाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। जो शख्स मौत को ज्यादा याद रखता है वो थोड़ी सी दुनिया पर भी खुश हो जाता है। अक्ल जितनी छोटी होगी जुबान उतनी लंबी होगी, क्योंकि बर्तन वही शोर करता है जो खाली होता है। बात सीरत की है, दिखावे की नहीं, वरना तेजाब भी तो देखने में पानी जैसा नजर आता है। इंसान की सबसे बड़ी खता ये है कि वो रब से पहले इंसान के सामने रोता है। गीबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। बेहतरीन सुबह वो होती है जो अल्लाह के जिक्र से शुरू की जाए। सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। बुरे वक्त में कभी किसी से कोई उम्मीद ना रखो, क्योंकि समझौता शेर को भी कुत्ता बना देता है। अल्लाह के आगे रोने से दर्द सुकून में बदल जाता है। जो लोग टूट जाते हैं और अल्लाह के आगे रोते हैं तो अल्लाह उन्हें फिर जोड़ता है और पहले से बेहतर और मजबूत बनाता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन मुसव्विर है। पता है अल्लाह की मोहब्बत क्या है? वो सारा दिन हमारे गुनाह देखता रहता है, हमारी नाफरमानियां देखता रहता है, और सुबह अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारा रिस्क भेजता है। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे वो देख नहीं रहा, और वो माफ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। उस देने वाले का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, ये तो लेने वाले ही दरवाजा खटखटाना भूल जाते हैं। इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की रहमत की दुकान ऐसी है जहां खरीदारी के लिए अगर जेब में नेकी नहीं